چکے بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے عید الفطر کی۔ ملک بھر میں عید الفطر کل بروز منگل 3 مئی کو منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے گزشتہ شب ماہ شوال 1443 ہجری کا چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مطلع صاف تھا، کسی بھی علاقے سے چاند کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں ہوئی، جس کے بعد متفقہ طور پر 30 روزے پورے کرنے اور عید بروز منگل 3 مئی کو منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے مطابق پاکستان میں شوال 1443 کا چاند کہیں نظر نہیں آیا۔ یکم شوال اور عید الفطر 3 مئی 2022 بروز منگل کو ہوگی۔ اس سال رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہوں گے۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے کہا کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ شوال المکرم کے چاند نظر آنے کی کوئی مصدقہ شہادت موصول نہیں۔ محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس وقت چاند کی عمر 17 گھنٹے ہے، جبکہ چاند دکھائی دینے کے لیے اس کی عمر 19 گھنٹے ہونا ضروری ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک میں عید الفطر 2 مئی کو ہوگی۔ برطانیہ میں بھی پیر کو ایک ہی دن عید منائے جانے کا امکان ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں سرکاری سطح پر آج عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ اس طرح رواں سال وطن عزیز میں 2 عیدیں منائی جائیں گے۔ پشاور، نوشہرہ، ٹانگ، بنو، چارسدہ، کوہاٹ، مردان، باجوڑ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیبر پختونخوا میں آج سرکاری سطح پر عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ صوبے کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ لاکھوں فرزندان اسلام عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ پشاور میں عید کا بڑا اجتماع چارسدہ روڈ عیدگاہ میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گورنر ہاؤس پشاور میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ کابینہ اراکین اور سرکاری حکام نے بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی سلامتی، بقا، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کے اجتماعات میں سیکیورٹی کے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے گزشتہ شب شوال مکرم کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے شوال مکرم کا چاند دیکھنے کی 130 شہادتیں موصول ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح رواں سال میں ملک میں 2 عیدیں منائی جائیں گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، لبنان، فلسطین، ملیشیا، جاپان، فلپائن، برونائی میں عید الفطر آج بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے عظیم الشان اجتماعات ہوئے۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز عید ادا کی۔ دیگر ممالک میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں 30 روزوں کے بعد آج عید منائی جا رہی ہے، جبکہ ملیشیا، برونائی، جاپان، ہانگ کانگ میں 29 روزوں کے بعد چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ امریکہ اور کینیڈا میں بسنے والے مسلمان عید الفطر آج بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ عید سے قبل پاکستان جیسی چاند رات کی گہما گہمی یہاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس میں صرف پاکستانی نہیں بلکہ پوری مسلم کمیونٹی بھرپور شرکت کر رہی ہے۔ تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے اصغر امام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصغر امام، بتائیے گا کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ اور کینیڈا میں بسنے والے مسلمان عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منا رہے ہیں، چاند رات کی گہما گہمی عروج پر ہے۔ جی، چاند رات کی جو گہما گہمی پاکستان میں ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ بات تو بیرون ملک پاکستانی نیوز میں نظر نہیں آئے گی، لیکن یہاں اس سے بہت زیادہ کم بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ پاکستانی بلکہ برصغیر کے دیگر علاقوں کے لوگ اور دیگر ممالک کے مسلمان وہ سارے یہاں پہنچتے ہیں اور چاند رات اسی طرح گہما گہمی ہوتی ہے جس طرح پاکستان میں ہے۔ یہاں اتفاق سے رمضان بھی اور اس کے بعد اب عید بھی تمام گروپوں کی طرف سے اتفاق سے رائے سے ایک ہی دن منایا گیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اس عید منانے کے لیے عید کی تیاریوں کے حوالے سے باہر نکلے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو تیاریاں
अब तक जो कई वर्षों से यहाँ पैंडेमिक की वजह से बड़े इज्तिमात नहीं हो पा रहे थे, अब जो एक नए इज्तिमात हुए हैं तो इसकी वजह से भी लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। और यहाँ पे कोई मीलों की लोगों की लाइन लगी हुई थी, जो एक हॉल के अंदर जो एक ईद बाजार जो लगाया गया था और चांद रात बाजार जो लगाया गया था उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मायूस होकर वापस लौटे। जी बहुत शुक्रिया असफर इमाम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद तो सर पर पहुंच गई मगर शॉपिंग अभी भी नामुकम्मल है। इफ्तारी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद शॉपिंग के लिए मार्केट गए। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर सबसे ज़्यादा रश देखने में आया। शहरियों का ये कहना था कि आखिरी रातों में शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद उमैर की इस रिपोर्ट में। ईद से कबल ईद शॉपिंग मुकम्मल हो ऐसा तो हो नहीं सकता। रोजों से कबल शुरू होने वाली ईद शॉपिंग अब तक नामुकम्मल। खवातीन की बड़ी तादाद आज भी मार्केट्स में अपनी पसंद की अशिया खरीदने पहुंची। किसी को मेहंदी के नए डिजाइन की तलाश है तो किसी को मैचिंग चूड़ियों की, कोई पसंद के जूते ढूंढ रहा है तो किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तलाश है। लिबर्टी जाते होते वहाँ पे रश बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए इस दफा यहाँ पे आ गए, लेकिन अभी आए थे यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे नहीं हुए मेहंदी के लिए, तो वैसे शॉपिंग कंप्लीट होगी कपड़ों की, अब चूड़ियाँ और मेहंदी रह गई। शॉपिंग तो ऐसा आपको पता ही है, मतलब रोजों में इतनी कोई खास नहीं होती है। शॉपिंग तो हम पहले से कर चुके हुए थे। अब बस जैसे बच्चों की ज्वेलरी और छोटी मोटी चीजें इस तरह से करके लेने निकले हुए हैं, वो भी लोड शेडिंग के हवाले और प्राइसेस आसमान पे हैं। मेरी तकरीबन शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने 2 कुर्ते लिए हैं खैर से अवाना मॉल से, और उसके अलावा मैंने सॉक्स वगैरह और कुछ काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये नहीं होता कि लड़की सज सवर रही हो, वो मैं कटिंग शटिंग करवानी थी, फिर कटिंग शटिंग मैंने करवाई है और मैंने कुछ अपने लिए खास कुछ चीजें ली हैं जेंट्स की। खवातीन का कहना है कि इफ्तारी के बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं। लोड शेडिंग के बायस वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मुतअद्दिद चक्कर लगाने के बावजूद अभी भी शॉपिंग नामुकम्मल है। दुकानदार जहां ग्राहकों की बड़ी तादाद में निकलने पर खुश हैं, वहां लोड शेडिंग से भी परेशान हैं। लोड शेडिंग की वजह से तो बहुत मुश्किलात है भाई, आपके सामने देख लो, लेट आ ही नहीं रहे, 5-6 घंटे तो जाते हैं। और कस्टमर की वजह से देख लो, कस्टमर माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से मुश्किलात हैं। दुकानदारों का कहना था कि कोरोना के बाद ये पहली ईद है जिसमें शहरी बड़ी तादाद में निकले हैं। अगर लोड शेडिंग पर काबू पा लिया जाता तो ईद का मजा दोबाला हो जाता। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद उमैर, न्यूज़ 1 लाहौर। ईद उल फित्र में एक रोज बाकी शॉपिंग जोरों शोर से जारी। बाजारों में खवातीन का रश, चूड़ियाँ, खुस्सा और कपड़ों की खरीदारी उरूज पर पहुँच गई। कराची के बाजारों में रश, खवातीन शॉपिंग में मसरूफ। हैदरी मार्केट में भी शहरियों का रश लग गया। चूड़ियों के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। रिवायती और सकाफती खुस्से भी दुकानों पर सजे हैं। ये जो है पंजाब के हिसाब से जो है ना खुस्से पहने जाते हैं और मुख्तलिफ मल्टी कलर में, सिल्वर में, गोल्डन में इनकी वैरायटी आती है और तकरीबन पूरी कराची में इसकी सखावत को पहना जाता है। मार्केटों में रश के बाद सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी ईद की तैयारियां जोरों पर हैं। खवातीन की चूड़ियों की खरीदारी और मेहंदी से रची है नए हथेलियों की बात ना हो तो बात नहीं बनती। नैयर अली की रिपोर्ट। खनकती शोख रंग चूड़ियां और मेहंदी रचे हाथ न हो तो ईद क्या। खवातीन की ईद शॉपिंग अमूमन 15वें रोजे से शुरू होती है और उसका इख्तिताम मैचिंग की चूड़ियों और हथेली पर बने मेहंदी के दिलकश डिजाइन से होता है। खवातीन का कहना है कि चूड़ियों से खनकती कलाइयां न हो तो ईद का लुत्फ कहाँ, मेहंदी के बगैर ईद कहाँ। खवातीन के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो लाजमी होती है ईद पे, और उसके बगैर तो ईद नामुमकिन ही लगती है, जैसे कि ना हो। मेहंदी मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मैं बचपन से लगाती मेहंदी के, उससे ना हाथ बहुत भरे भरे हो जाते हैं, प्यारे लगते हैं, और ईद के मौके पर तो फिर तो लगानी चाहिए। इस्लामाबाद में भी निजी शॉपिंग मॉल्स और बाजारों में चूड़ियों के खुसूसी स्टॉल्स और मेहंदी लगाने का खास एहतमाम किया गया है। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ नैयर अली, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। ईद की तैयारियों में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं। खूबसूरत नजर आने के लिए मर्द हजरात ने भी ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। रहीम यार खान से नदीम जिया की रिपोर्ट देखिए। बनना संवरना सिर्फ खवातीन का शौक नहीं, मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं।
गुजरावाला में ब्यूटी सैलून्स पर नौजवानों का रश लगा है, जहां फेशियल, मास्किंग, हेयर कलर और फायर कटिंग की जा रही है। ईद पर खूबसूरत दिखने की ख्वाहिश में मर्दों ने खवातीन को भी पीछे छोड़ दिया। सारा साल जैसे कैसे भी है, ईद का इवेंट आता है, ठीक है, साल में 1-2 मरतबा आती है, ठीक है, जाहिर सी बात है, तैयारी होनी चाहिए। कज़नों के साथ अपनी ईद मनाऊंगा और उनमें से इंशाल्लाह मैं सबसे हैंडसम दिखूंगा। मर्दाना ब्यूटी सैलून्स पर नौजवानों का रश देखकर लगता है कि ईद पर होने वाले मुकाबला हुस्न में मर्द खवातीन को पीछे छोड़ देंगे। नदीम जिया, न्यूज़ 1, रहीम यार खान। ईद की आमद आमद, मुल्तान के बाजारों में भी गहमा गहमी। खवातीन बच्चे बड़े ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। खवातीन भी मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां खरीदने में मगन है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद सर पर आते ही मुल्तान के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। खवातीन बच्चे बड़ों ने ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। खवातीन मैचिंग ज्वेलरी और शूज खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि बच्चों के साथ शॉपिंग करने का अपना ही मजा है। हमने तो बाजार आना है, बच्चों के लिए चीजें लेनी है, सामान लेना है, हमने तो ईद मनानी है, क्या करें अब। पिछली बार जो चीज़ें ली थी ना हमने 300-400 की, इस दफ़ा हो गए 800-800 के, 900-900 के हो गए। महंगाई ने हमारा जीना हराम कर दिया है जी। अब क्या करें जी, बच्चों की डिज़ायर भी तो हमने पूरी करनी है। कुछ शहरियों ने महंगाई का शिकवा भी किया। कैमरामैन जाहिद रेहान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सियासी मंजरनामे पर नजर डालें तो हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मस्जिद नबवी वाक़े पर इमरान खान और शेख रशीद को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती कराने पर इमरान खान और शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा सकता है। तमाम हथकंडों के पीछे इमरान खान का ही हाथ है। जुर्म साबित हो गया तो उन्हें अगवा नहीं, बाज़ाब्ता गिरफ्तार करेंगे। पूरी कौम को की नौजवान नस्ल जो है उसको गुमराह करने के लिए जो है वो एक इस वक्त और एक फितने का रूप धारे हुए हैं। और उसके बाद जो है वो सऊदीया में उसने जो है ये नापाक जिसारत जो है इसकी मनसूबाबंदी की है। मनसूबाबंदी के तहत इसको वहाँ पे इसके ऊपर अमल दरामद करवाया है। तो इसलिए इनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल जो भी शहरी जो है वो अपने मुकदमात या वो अपना जो है वो कार्रवाई चाहते हैं, हुकूमत इसमें बिल्कुल रुकावट नहीं बनेगी। इमरान खान और शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क बाहर निकलेगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, चंद हफ्तों की हुकूमत है, इनका सरिया जल्द ही निकल जाएगा। नून लीग हुकूमत में होती है तो गिरेबान पकड़ती है और बाहर होती है तो पाँव पकड़ती है। ये दुनिया में जहाँ जाते हैं इनके खिलाफ नारे लगते हैं। लोगों में नफरत मजीद बढ़ रही है, इन्हें अपने करतूत देखने चाहिए। किसी के खिलाफ इस तरह से लाशनी की केसेस कराना ये पुराना वतीरा है नून लीग के लोगों का। और इन्होंने हमेशा ये जो तौहीन रसालत के कवानीन हैं इनको इस तरह से मुखालफों को इस्तेमाल किया है। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा कि हयाताबाद में जिस तरह लोग जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने किया, पूरा पाकिस्तान इस वक्त यक जुबान है इस ज्यादती के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ। और जो इमरान खान और जो तहरीक इंसाफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए खड़ी होती है, जो इमरान खान जिसने इस्लामोफोबिया के ऊपर सबसे बड़ा स्टैंड लिया, जिसने यूनाइटेड नेशन से जो है वो करवाई, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उनको इस तरह के जाली मुकदमे बना के, और जो इस वक्त उनका ये जो प्लान है कि वो इसमें लोगों को अरेस्ट करेंगे, लोगों को इनसे नफरत और बढ़ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से ये जा रहे हैं, इनके एक बिल्कुल दावत दे रहे हैं अपने इंजाम को, और ये अपने इंजाम को बड़ी जल्दी पहुंचेंगे।
वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की बात करेंगे, जिन्होंने मस्जिद नबवी वाक़े को मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का शाखसाना करार दे दिया। कहती हैं जो कानून को हाथ मिलेगा कानून उसको हाथ मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुनज़्ज़म मनसूबा के तहत मस्जिद नबवी की बेहुरमती की गई। लोग इशारे करके नारे लगवा और गालियां पड़वा रहे थे। मस्जिद नबवी की बेहुरमती के हवाले से मुकदमा इंतकामी कार्रवाई नहीं, जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने खुद देखा कि वो लोग इशारे कर करके नारे लगवा रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर। मैंने खुद देखा वो लोग इशारे कर करके गालियां पड़वा रहे थे खातून को मस्जिद नबवी के अंदर। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान के लिए ऐसा सऊदी पैकेज तैयार हो रहा है जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इसी सिलसिले में बदस्तूर सऊदी अरब में मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब वहाँ मौजूद हैं, जिसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है, इंडस्ट्रियल जोन्स की बात है। जो 4 साल जो पेट्रोल नहीं खरीद सके, ईंधन का इंतज़ाम नहीं कर सके, LNG का इंतज़ाम नहीं कर सके, उसके अंदर उसके तमाम मंसूबे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने फराह गोगी को इमरान खान की फ्रंट पर्सन करार दिया और कहा कि फराह गोगी के एहसासों में अरबों रुपए का इजाफा हुआ है। इमरान खान 16 करोड़ मालियत की बुलेट प्रूफ BMW गाड़ी साथ ले गए हैं। इमरान खान के पास मौजूद एक पिस्टल भी तोशाखाने में डिक्लेयर नहीं की गई, वो स्मगल करके पाकिस्तान लाई गई। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आजम हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्निटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी, जो कोई वफद बाहर से आते थे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म ने ईद पर 0 लोड शेडिंग की हिदायत की है। 1 मई से लोड शेडिंग को खत्म किया जा रहा है। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। नवाज, शहबाज, हमजा, सुलेमान, अराना, सनाउल्लाह समेत 7 लोगों के नाम थाने में लिखवा दिए हैं। कोसार थाने में लिख कर दे दिया 7 आदमियों के खिलाफ कि अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं तो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। और इसी के बारे में आबद शेर अली का वालिद जो कहता है कि वो उसने 18 कत्ल किए नहीं किए, मुझे नहीं पता। दुनिया के जिस मुल्क में ये उतरेंगे लोग इनको अंडे मारेंगे। और मैं सारी कौम के सामने कहता हूं मैं डरने वाला नहीं हूं। जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। ये शेख रशीद और इमरान खान को तहरीक से पहले जेल भेजना चाहते हैं और इस तहरीक को आग लगा देना चाहते हैं। मेरा एक भतीजा नहीं, दूसरा भी ले जाओ, तीसरा भी ले जाओ। मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद में इमरान खान समेत PTI के 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद, कासिम सूरी, राशिद शफीक और अनिल मुसरत भी नामजद हैं। मस्जिद नबवी में PTI कारकुनान की सियासी नारेबाजी के खिलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस ने 6 मई को मुल्क भर में यौम हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान कर दिया। फैसला जनरल सेक्रेटरी PDM शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में किया गया। इजलास में PDM में शामिल जमातों के नुमाइंदे भी शरीक थे। बात करें कुछ मौसम की और रुख करें लाहौर का, तो लाहौर में सूरज के तेवर बिगड़े तो गर्मी ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। पारा 34 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, जबकि मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है फैसल खान। फैसल खान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिलाशुबा आपने ठीक कहा। लाहौर का मौसम इस टाइम बहुत ज़्यादा खुशगवार है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है और हल्के हल्के बादल भी आ जाते हैं। और धूप भी जब निकलती है, धूप में वो तेज़ी नहीं है, वो वाली सख्ती नहीं है जो आमतौर पे अप्रैल के पूरे महीने में अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है। और पूरा महीना अप्रैल का, हालांकि अप्रैल का महीना कंपैरेटिवली बेहतर गुजरता था, लेकिन अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा गर्म गुजरा है। पूरा रमज़ान और आज आखिरी रोज़ा है और आज अल्लाह ताला ने मई के महीने में इतना अच्छा मौसम कर दिया। और जब हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ईद और ईद के बाद जो 2 दिन हैं वहाँ पे मौसम बड़ा खुशगवार रहेगा, बारिश के भी चांसेस हैं और बादल भी रहेंगे, हवा भी चलती रहेगी। और यहाँ इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो उनका कहना था कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ रहेगा 31 या 32, हालांकि आम हालात में 41-42 तक जा चुका हुआ है।
تو عید کے لیے اچھی خبر ہے، اور یہ وہ والی خبر ہے جس کا پورے رمضان میں لاہور کے شہری انتظار کرتے رہے ہیں. لیکن چلیں، رمضان تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں گزارا. گرمی بھی تھی اور ظاہر ہے لوڈ ٹھیک ہے. شیڈنگ بھی بہت تھی. شکریہ فیصل خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی سورج آگ برسانے لگا ہے. شہر قائد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. آج بھی شہر کا پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے یاسر سلیم سے، جو کہ اس وقت کشمیر روڈ پر موجود ہیں. یاسر سلیم، آگاہ کیجیے گا. بالکل، کراچی میں گرمی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کراچی کے مطابق آج کراچی کا جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ تقریباً 28.6 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور جو میکسیمم ٹیمپریچر کراچی کا جائے گا وہ تقریباً 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جو ہے وہ رہنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں جو گرمی ہوگی وہ تقریباً 40 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ کی جو ہے وہ محسوس کی جائے گی، اور ہوا میں نمی کا تناسب بھی جو ہے وہ تقریباً 60 سے 65% کے درمیان رہے گا. سمندری ہوائیں جو شہر کی جانب چل رہی ہیں اس میں مسلسل جو ہے وہ صبح کے اوقات میں کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی جو شدت ہے وہ زیادہ محسوس کی جاتی ہے. لیکن شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں چلنے سے دوبارہ سے جو ہے وہ کراچی میں جو موسم ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے. ہم آپ کو بتا چلیں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے سندھ کے مختلف شہروں میں ہیٹ ویو الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. کراچی میں بھی ہیٹ ویو الرٹ تو نہیں ہے، لیکن ایک ایڈوائزری ہے جو کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو جاری کر دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی جو بھی ہیٹ ویو کراچی کے اندر آتی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تمام تر ادارے جو ہیں وہ بالکل تیار رہیں. لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے مزید 3 دن جو ہیں وہ کراچی میں گرم رہیں گے. اس کے بعد کراچی کا موسم جو ہے وہ کچھ معتدل ہو جائے گا، اور لیکن بارش کے کوئی بھی امکانات نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسر سلیم تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ملک میں سیاسی درجہ حرارت بھی اپنے عروج پر ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے شریف خاندان کے خلاف کیسز پر وائٹ پیپر جاری کر دیا. کہتے ہیں نون لیگ کو NRO2 ملنا شروع ہو گیا. شہباز شریف نے 16 ارب روپے کے کیس کا ریکارڈ غائب کر دیا ہے. سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ شریف فیملی پر 40 سے 45 ارب روپے کے 16 مقدمات چل رہے ہیں. شہباز شریف نے 16 ارب روپے کے کیس کا ریکارڈ غائب کر دیا ہے. یہ سارے کیسز ہمارے دور سے پہلے کے ہیں. انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا، 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4 ارب روپیہ آیا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. عمران خان نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں دو بار کرپشن پر نکالی گئی. ان کی لوٹ مار کی وجہ سے ملک خسارے میں گیا. مشرف نے انہیں NRO دیا اور NRO دے کر ملک کا نقصان کیا. عمران خان نے فرح خان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ فرح خان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. نیب سے پوچھنا ہے کہ فرح خان پر جو کیس ڈالا گیا وہ کیسے بن سکتا ہے. یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی MLA یا پبلک آفس ہولڈر، وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. عمران خان نے مزید کہا کہ آصف زرداری نے توشہ خانے سے 3 بلٹ پروف گاڑیاں نکلوائیں. نواز شریف نے 10 سال بعد ایک گاڑی کو قانونی کرایا. اب پھر یہ دونوں پارٹیاں مل کر ملک کو لوٹیں گی. ادھر لاہور نیب نے فرح خان اور شوہر کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا. نیب اعلامیہ کے مطابق قانونی طور پر پبلک آفس ہولڈر کے قانونی ورثہ کے خلاف نیب انکوائری کر سکتا ہے. فرح خان کے شوہر 1997 سے 1999 تک چیئرمین ضلع کونسل گجرانوالہ رہے. عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی اپنے شہروں کو واپسی کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے. لاہور کے بس سٹینڈ پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے. شہری ٹکٹ کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ ٹرانسپورٹرز نے زائد کرائے وصول کرنے شروع کر دیے ہیں. فطر میں 2 روز باقی ہیں. دوسرے شہروں سے آئے شہریوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں، اور اس لیے وہ اپنے اپنے آبائی شہروں کا رخ کر رہے ہیں. لاہور کے بس سٹینڈز پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا. بس سٹینڈز کے ٹکٹ کاؤنٹرز پر ٹکٹوں کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد انہیں واپسی کی بسیں مل رہی ہیں. کھلوتے ہیں تے پریشان ہاں. ٹھیک ہے، ٹکٹاں نہیں لب رہے. 2000 روپیہ کرایہ لبیا ہے، بھر کے تو پھر جا رہے ہیں. سات کا بعد 1:15 بجے گڈی آنی ساڈی. کرایہ روٹین میں چل رہا ہے جو پہلے تھا کرایہ، اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں ہم.
आसानी से मिल रही हैं टिकटें। 700 रुपया किराया ले रहे हैं सरगोदे का। सुबह हम 8 बजे आए हैं, यहाँ इतनी लंबी कतारें थी, काफी डिस्टर्बिंग के बाद हमें यहाँ से टिकटें मिली हैं। दूसरी जानिब बस स्टैंड मालिकान ने इजाफी किराए भी वसूल करने शुरू कर दिए हैं, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से बस स्टैंड पर किरायों का जायजा लेने के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी है। बस अड्डों पर रश बढ़ा तो ट्रांसपोर्टर्स की भी चांदी हो गई। मुसाफिरों से मनमाने किराए बटोरने लगे। अपनों में ईद मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। कराची से दीगर शहरों और गांव जाने वाले मुसाफिर डबल किराया भरने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों की मजबूरी का फायदा उठाकर दोनों हाथों से लूट मार कर रहे हैं। कराची से हैदराबाद के लिए 500 की जगह 600 या 700 नहीं, पूरा 1000 किराया वसूल किया जा रहा है। ईद आई हुई है, इनको इतना है, ज्यादा बढ़ा रही है। गरीब बंदे की इनको नहीं है, इनके पैसों की है। 400, 450, 500 में ये इतने होते हैं, कभी 350 होते हैं, आज बढ़ाए हैं इनके। दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर भी ज्यादा किराए के बायस रुल गए। ईद पे सर ये तो पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ यहाँ का नहीं है, हर जगह का यही हिसाब है। ईद पे अवाम जो लोगों ने जाना ही जाना है घर, लाजमी सी बात है, और लोगों की मजबूरी है, उन्होंने पैसे एक्सेस भर के जाना है। कल भी हम खाना खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, और परसों भी अल्लाह पाक खिलाएगा। तो इस चीज से तो अल्लाह पाक ने वादा किया खाने से, और महंगाई से कोई टेंशन नहीं। ड्राइवर ने भी एक ही रट लगा रखी है कि वापसी पर उन्हें सवारी नहीं मिलती। वहाँ से गाड़ी खाली आ रही है, ठुप 0/0, एक भी बंदा नहीं मिलता। क्या करें, अगर हम लोग खाली नहीं आते तो ये कहाँ जाएंगे। ईद पर घर तो सब ने ही जाना है, लेकिन ज्यादा किराए के बायस मुसाफिरों की खुशियां मांद पड़ गईं।